नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। आज एक संघर्ष की खबर लेकर आपके बीच में आया हूं कि एक महिला अपने हक के लिए, और न सिर्फ अपने हक के लिए, तमाम महिलाओं के हक के लिए किस तरह लड़ सकती है, किस हद तक लड़ती है, कैसे दौर से गुजरती है, कैसे विरोध का सामना करती है, इसकी एक बड़ी ही अद्भुत कहानी, बड़ी ही हैरान करने वाली कहानी केरल में मिली है। कल मैंने रात ये खबर पढ़ी केरल की, और उसके बाद से लगातार मैं रेहाना फातिमा नाम की इस महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ जान पहचान काम आई केरल के कोच्चि में बसी हुई रेहाना, उनसे आज सुबह मेरी बात हो पाई, और आज सुबह मैंने उनका घंटे भर का लंबा इंटरव्यू किया। उसके कुछ हिस्से हम आपको इस वीडियो के बीच बीच में दिखाएंगे, लेकिन आज ही हम उनका वो पूरा का पूरा वीडियो इंटरव्यू अलग से भी पोस्ट करेंगे। बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है उनकी। ये खबर जो है अपने आप में कुछ लोगों को शुरू में अटपटी लग सकती है, लेकिन इसको सुनिए ध्यान से। हुआ ये कि रेहाना केरल में महिलाओं के हक के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला हैं। वो कुछ स्कूल कॉलेज के समय से ही कुछ बागी तेवरों वाली थी। बाद में धीरे धीरे उनको समझ आया कि परिवार में अकेली मुखिया लड़की रह गई हैं, कोई पुरुष नहीं था, तो उन्होंने लड़ना सीखा, हक के लिए लड़ना सीखा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं वो। ശരീരത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോ ഫേസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച ഓരോ സമയത്തും എന്റെ ശരികളിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചത്, അങ്ങനെ ജീവിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഓരോ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ അരുതുകൾ, അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമുള്ള അരുതുകളൊന്നും അല്ലത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും നേരെയുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീയും നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ, ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പറയാനും എഴുതാനൊന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിന് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ കഥ വായിക്കാൻ ആൾക്കാർ നേരം അങ്ങനെ വായിക്കാതെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിനൊരു പടങ്ങളുടെ ആവശ്യം വന്നു. ഈ കഥകളൊക്കെ വായിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പടം കാണുമ്പോഴെങ്കിലും അതൊന്ന് നോക്കൂലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ബോഡി പൊളിറ്റിക്സ് പറയേണ്ട ആവശ്യം. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ബോഡി പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഹായ്, അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ റോസി പീറ്ററിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് റോസി, അത് പീറ്റർ. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ, ആ കുഞ്ഞിത് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ടേ. നല്ല കുഞ്ഞായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടായില്ല. ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് റോസി കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തത് എത്ര ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണക്കി ഇവരെ വളർത്താൻ പറ്റും. നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങിയിരിക്കും. വിളിച്ചവരെയും അടുത്തവരെയും തോളത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും വളർത്താൻ ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഉണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അവരടുത്ത മുട്ടയിട്ടു അല്ലേ, അടുത്ത കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹായ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്പേസിൽ ചെടിയൊക്കെ വെക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ അതിന് എന്താ പറയുക, വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറി വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി നേരെ അതിൽ കൊണ്ടിടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞീച്ച വരും, സ്മെല്ല് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പുഴു വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും അസ്വസ്ഥയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബോട്ടിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കുക. ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഏകദേശം ഇതാ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എടുത്ത് വെച്ച ബോട്ടിലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളിത്തോലും മുട്ടത്തൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി, ചായരിച്ചപ്പൊടി അത്രയാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെടിച്ചെടിയിൽ എങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് തുറക്കുക. അത് തുറന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെടിച്ചെടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ചെടിയുള്ള ചട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അധികം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചരിഞ്ഞ് വീഴാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും. അങ്ങനെ ആ ചെടിക്ക് അതിൻ്റെ വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ പൊടിയിച്ച് വറുക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് പുഴുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് അത് വരുമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്പ്. अभी उनके बारे में एक फैसला केरल के हाई कोर्ट से आया। हाई कोर्ट के जज ने लोअर कोर्ट में जिला अदालत में रेहाना के खिलाफ चल रहा एक मामला खारिज कर दिया। ये मामला दो लोगों ने वहाँ दायर किया हुआ था। एक तो भाजपा के एक नेता है वहाँ के केरल के, उन्होंने इसको दायर किया था। उन्होंने इसको बच्चों का यौन शोषण बतलाया था और अश्लीलता भी बतलाई थी। कमोबेश इन्हीं दोनों धाराओं पे केरल की पुलिस ने भी रेहाना के खिलाफ इसी मामले में जुर्म दर्ज किया, गिरफ्तार किया उनको और अदालत में ये मामला चलाना शुरू किया। वहाँ चल रहा था, निचली अदालत में ये मामला चल रहा था। अब मामला क्या है ये बतलाऊँ मैं आपको। हुआ ये कि रेहाना के बच्चे पेंटिंग में दिलचस्पी लेते थे और रेहाना एक जिम्मेदार माँ होने के नाते अपने बच्चों के हर सवाल का जवाब देती थी। उनको हर महिला का, हर लड़की का सम्मान करना सिखाती थी। तो उनके बच्चों ने लॉकडाउन के इस पीरियड में, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब उन्होंने कहा कि क्या वो अपनी माँ के बदन पर पेंटिंग कर सकते हैं। तो रेहाना ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते, ये तो माँ का बदन है उनका, इसके ऊपर वो चाहें तो पेंटिंग करें। और उनका ये मानना है रेहाना का कि जो बच्चे अपनी माँ के बदन का सम्मान करना सीखते हैं, उससे फेमिलियर रहते हैं, वाकिफ़ रहते हैं, वो बाहर निकलकर दूसरी लड़कियों और महिलाओं के बदन का भी सम्मान करते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने बदन पर पेंटिंग करने दी। उनका ऊपर का आधा बदन खुला हुआ था इस पेंटिंग के वीडियो में, और उन्होंने बेधड़क पेंट किए हुए अपने बदन के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि उनके बच्चों ने उनके बदन पर ऐसी पेंटिंग की है। इसको लेकर वहाँ एक बखेड़ा खड़ा हुआ कि आपने ऐसा वीडियो बनाना और उसको पोस्ट करना, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? बेसिकली मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि मेरे बेटे अच्छी तरह पेंटिंग करता है, ड्राइंग्स करते हैं। तो इससे पहले भी मैं बॉडी आर्ट कर चुकी हूँ, अपने शरीर पर पेंट लगा के मॉडलिंग कर चुकी हूँ। और यहाँ केरला में ओणम के टाइम पे एक फेस्टिवल चलता है त्रिशूर में। वहाँ सारे मर्द अपने शरीर में टाइगर फेस बना के नाचते हैं पूरे टाउन पे, ऐसे नाचते। लेकिन कोई भी औरत या लड़की वहां पे अभी तक एंट्री नहीं किए थे। पहली बार मैंने किया था, और मैंने किया और मेरे साथ ही बहुत बहुत ग्रुप्स है ना, एक ग्रुप में मैं थी और अलग एक ग्रुप में और भी औरतें थी। तो फर्स्ट टाइम पे हमने किया, आई थिंक इट इज इन 2016 और 17 दैट टाइम, पहली बार ऐसे किया था। तो उस टाइम से, बहुत टाइम से हम यही कहना चाहते हैं कि सभी सेलिब्रेशंस, बाहर के जो भी सेलिब्रेशंस है उसमें आदमी लोग ऐसे आप खुला जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वो मौज मस्ती बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन औरतें और लड़कियों को हर भीड़ में जाना मना है, हर फेस्टिवल का सेलिब्रेट करना मना है। ऐसे भीड़ में जाएंगे तो समझ ऐसे करते थे कि भीड़ में जाएंगे तो लड़के हैं वहां पे, वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए तुम मत जाओ। ऐसे करके सबको पीछे पीछे रखते हैं। तो ऐसे बहुत से विषयों में हमें कभी कभी ऐसे स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि हर औरतों और लड़कियों को हर सेलिब्रेशन और हर जो जगह है जहाँ पे
हमारी सोसाइटी में ऐसे ही भाग लेने की अधिकार है। हम सब इक्वल है ना। हमारे लोग हमें इक्वली मानते हैं। ऐसे पुरुष अलग, स्त्री अलग ऐसे नहीं मानते। लेकिन हमारे समाज में जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ है, वो ऐसे मानते हैं, अलग करते हैं। इसी विषय का चर्चा ऐसे चल रहे थे, उसी टाइम पे मैं भी वहाँ टाइगर फेस लगा के डांस किए थे उस टाइम पे। और ऐसे सब करते रहने पर वो मेरे बच्चे ने भी ये सब देखा है। और उसे भी ऐसा सोचा है कि कोरोना टाइम है, घर पे है हम। तो उसने कहा कि मुझे भी बॉडी आर्ट करना है, क्योंकि मुझे आर्टिंग, ड्राइंग और पेंटिंग बहुत पसंद है ना। मुझे भी बॉडी आर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे पूछा। क्या आप अलाउ करेंगे आपके शरीर में पेंटिंग करने के लिए, ऐसे पूछा मेरे बेटे ने। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, मेरे बॉडी पे भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे बॉडी तुम्हारे लिए कैनवास बनेगा, ऐसे करो। तो उसने कहा मुझे वो वीडियो निकालना है, निकाल के वो भी हमें लोगों को दिखाना है। तो मैंने कहा अभी तुम बच्चे हो, तो तुम्हारा क्रिएटिविटी, आर्ट जो है वो सोसाइटी देखना है, सोसाइटी को देखना है। उसके साथ ही मुझे एक मैसेज भी देना है कि हर बच्चे घर से अपनी माँ को और माँ के शरीर को पहचानते हुए बड़े होना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके अपने सामने जो भी व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, उनको इक्वल मान के रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे अगर एक बेटा हो, बड़े होकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अ, बाहर दिखने वाले हर लड़कियां उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ही हो, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही हो, ऐसे मत सोचना। हाँ। तो मेरी मेरी और मेरे तरह के कुछ लोगों के ऐसे सोच है कि हर टाइम पे बच्चों को अपने ग्रोइंग स्टेज पे, हर स्टेज पे जैसे जैसे जिस जिस तरह के उनके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, उस तरह की सेक्सुअल एजुकेशन टाइम टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनको समझ सके, उनके बॉडी को समझ सके, और उनके साथ जो है इक्वल बच्चे हैं, उनको भी जानना चाहिए। भाजपा के एक नेता ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की। वहाँ की साइबर पुलिस जो है केरल की, उसको भी लगा कि ये तो छोटे बच्चों से, महिला भले उनकी माँ हो, वो अपने बदन पर ऐसी पेंटिंग करवा रही है, तो ये उन बच्चों का यौन शोषण है, ऐसा पुलिस ने माना। तो उन्होंने पॉक्सो एक्ट लगा दिया, जो बच्चों के यौन शोषण पर एक्ट लगता है, वो एक्ट रेहाना के खिलाफ लगा दिया। और दूसरे एक्ट भी लगा दिए, अश्लीलता फैलाने के, इसके उसके, ऐसे एक्ट भी लगा दिए। अरेस्ट कर लिया रेहाना को, ये 18 दिन जेल में रही। वहाँ से निकल के उन्होंने, जब ये मामला चल रहा था निचली अदालत में, तो इन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि निचली अदालत में मेरे खिलाफ ये गलत मामला चल रहा है। हाई कोर्ट के जज एक पुरुष जज हैं, वो नाम से मुझको थोड़ी गलतफहमी हो रही थी, तो मैंने रेहाना से ही इंटरव्यू में पूछा। ये पुरुष जज हैं, इन्होंने जो फैसला अभी दिया है, इससे केरल की कम्युनिस्ट सरकार और वहाँ के भाजपा नेता, इन दोनों को ही निराशा होगी। अब आप विचित्र चीज़ देखिए कि वहाँ की सरकार के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी लगातार लगे रहते हैं, लेकिन एक तरफ तो कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस, उसने भी यही मुकदमा चलाया और यही शिकायत एक भाजपा नेता ने भी दर्ज की। इन दोनों के खिलाफ एक अकेली महिला लड़ रही थी जो अपने बच्चों के साथ रहती है, उसका कोई जीवन साथी भी अभी उसके साथ में नहीं है। तो जज ने इसमें फैसला देते हुए जो कहा, मुझको उन शब्दों को थोड़ा सा इसमें देख कर कहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेहाना ने कोई अश्लीलता नहीं की है। नग्नता और अश्लीलता, इसमें बड़ा फर्क होता है, ऐसा जज ने कहा, अपने फैसले में लिखा है ऐसा। नग्नता और अश्लीलता में बड़ा फर्क होता है। नग्नता अनिवार्य रूप से अश्लीलता नहीं होती। जज ने कहा, लिखा है कि रेहाना ने अपने बदन के आधे हिस्से को, उघड़े हिस्से को, यह कहते हुए उजागर किया, सोशल मीडिया पर डाला
कि समाज में पुरुष तो अपने बदन के आधे उगड़े हिस्से को लेकर आसानी से जी लेते हैं, महिला के आधे हिस्से को लेकर परेशानी होती है, इसलिए महिला अपने बराबरी के हक का दावा करती है। तो ये बराबरी के हक का दावा करने के लिए भी रेहाना ने ये काम किया। तो जज ने माना कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये एक सामाजिक और राजनीतिक बयान है एक महिला का जो बराबरी के हक का दावा कर रही है। जज ने ये माना कि इसमें पॉक्सो एक्ट लगाना निहायत गलत बात थी। एक महिला अपने बदन पर अपने बच्चों से अगर पेंटिंग करवा रही है या उनको करने दे रही है, इसमें कोई पॉक्सो एक्ट नहीं है, इनमें बच्चों का कोई यौन शोषण नहीं हुआ है। उन्होंने बड़े अच्छे, इस फैसले में बड़े अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। उन्होंने लिखा है, द राइट ऑफ अ वुमेन टू मेक ऑटोनोमस डिसीजंस अबाउट हर बॉडी is at the very core of fundamental rights to equality and privacy। जज ने ये माना है कि ये बुनियादी हक है महिला का, अपने बदन को लेकर आज़ादी। जज ने ये भी लिखा है कि ये संविधान के धारा 21 के तहत उसका फंडामेंटल राइट है, उसका बुनियादी अधिकार है, ये लिखा है जज ने। उन्होंने लिखा है कि निचली अदालत में जो मुकदमा चल रहा है, जिन धाराओं के तहत ये मुकदमा दायर किया गया है, ये निहायत गलत है, क्योंकि ये बहुत ही मासूम कला की अभिव्यक्ति है, कला की एक मासूम अभिव्यक्ति है, इनोसेंट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये उन्होंने कहा। जज ने और बहुत सारी अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो इस महिला ने इसलिए बनाया कि वो चाहती थी कि एक्सपोज दिस डबल स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, कि मर्द के बदन को लेकर कोई रोक टोक नहीं है, महिला के बदन को लेकर एक ऐसी रोक टोक है। तो ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है। इसका एक लिंक हम इस YouTube वीडियो के साथ पोस्ट भी करेंगे, आप उसको पढ़िएगा। इस खबर को, बड़ी दिलचस्प खबर है और आपको समझ में आएगा कि इस देश के कानून की एक व्याख्या पुलिस कैसे करती है और उसी प्रदेश का हाई कोर्ट का जज कैसे करता है। उस जज ने ढेरों तारीफ की है रेहाना की। तो रेहाना से हमने जो बात की वो लंबी बातचीत है, उसका कुछ हिस्सा हम यहाँ पे डालेंगे। अब मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ उस इंटरव्यू से परे की बातें, वो ये है कि समाज में महिलाओं को अपने हक का दावा करने के लिए लड़ना पड़ता है। केवल मुस्लिम महिला को नहीं, किसी भी धर्म की महिला को, उसको अपने हक मांगने के लिए लड़ना पड़ता है। बिना मांगे उसको कुछ नहीं मिलता। एक महिला को अपने बच्चों को अपने बदन का सम्मान कराने के लिए, अपने बदन से उनको वाकिफ़ करवाने के लिए, अपने बदन को कैनवास की तरह इस्तेमाल करने देने के लिए गिरफ्तार होना पड़ा, जेल काटनी पड़ी, मुकदमा झेलना पड़ा, तब जाकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा साहसी फैसला दिया है। मैं साहसी फैसला इसलिए कहूँगा कि जज ने जितनी बातें इसको लेकर लिखी हैं, दकियानूसी समाज में बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। अदालत में ये मामला चलते हुए रेहाना को ये वीडियो हटाना पड़ा सोशल मीडिया से, क्योंकि मुकदमा चल रहा था इसको लेकर। अब वो फिर अपने वकील से सलाह करने वाली हैं कि क्या उस वीडियो को वो दोबारा डाल सकती हैं। मैं रेहाना के बारे में ये बतलाना चाहूँगा, केरल का एक बड़ा प्रमुख तीर्थ स्थान है जो अदालती विवादों को लेकर पिछले वर्षों में लगातार खबरों में रहा है। सबरीमाला नाम है उस जगह का। सबरीमाला में महिलाओं को दाखिला उस उम्र में नहीं मिलता जो आमतौर पर माहवारी की उम्र मानी जाती है, 10 साल से लेकर 50 साल तक। इस उम्र की महिला को सबरीमाला में घुसने नहीं मिलता, वरना वहाँ पर पुरुष किसी भी उम्र के जाते हैं, पुरुष किसी भी धर्म के जाते हैं, तमाम धर्मों के लोग जाते हैं जिनकी आस्था है वहाँ। हालांकि यह है एक हिंदू मंदिर। इस जगह पर भी रेहाना घोषणा करके वहाँ पर पुलिस की हिफाजत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि हर महिला वहाँ जा सकती है किसी भी उम्र की, उस मंदिर में दाखिल होने के लिए वहाँ पहुँची। लेकिन वहाँ पे जो लोग खिलाफ थे महिलाओं के दाखिले के,
उन लोगों ने अपने बच्चों को पूरी की पूरी ज़मीन पे लिटा दिया और कहा कि इन बच्चों के ऊपर से चल के जाओ अगर तुमको जाना है तो 2 बच्चों की माँ है रेहाना, उनसे ये तो हो नहीं सकता था कि बच्चों पर पैर रख रख कर जाए। तो जो लोग तकियानूसी थे, कट्टरपंथी थे, जो महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ थे, उन्होंने इस तरह से उसको रोका था रेहाना को। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि मैं उन्हीं के शब्दों को आपको बीच बीच में सुनाऊंगा, आप सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इस इंटरव्यू को भी अलग से ज़रूर देखिएगा, हम कोशिश करेंगे आज ही पोस्ट करने की। मैं रेहाना एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आपने सबरीमाला टेम्पल का कहा, वहाँ मंदिर में आपने जाने की कोशिश की थी। उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो सबरीमाला मंदिर में शायद ऐसी लड़कियों और महिलाओं को नहीं जाने देते हैं जिनके पीरियड्स की उम्र रहती है, ऐसी लड़कियों को नहीं जाने देते हैं, महिलाओं को वहां पर। दूसरा, आप मुस्लिम भी हैं, तो वहां पर मुद्दा क्या था? आपको जो रोकने की कोशिश की गई थी उम्र की वजह से कि मुस्लिम होने की वजह से भी? हमें पता चाइल्डहुड से ही मैं वो यही कहानी सुनते आई हूँ कि शबरीमला एक जगह है, वहां पे एक सेक्युलर गॉड रहता है, सारे धर्म के कम्युनिटी के लोग वहां पे जा सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बारिंग है वहां पे, क्योंकि 10 साल से 50 साल का, तो ऐसे था। लेकिन हमें सबको पता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, क्योंकि हर एज के स्त्रियां और महिलाएं और लड़कियां वहां पे जा सकते हैं, उसका तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो प्लेस जो है एक सेक्युलर गॉड का प्लेस है। तो मैं बहुत साल से ये सोच रही कि कभी ना कभी मैं जाऊंगी, ऐसे सोचा था, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा स्टोरीज सुने थे कि मुझे वहां पे जाना है, और क्या है कैसे है ऐसे सब जानना था मुझे, इसलिए मैं वहां जाना चाहती थी। तो ये मामला बतलाता है हमको कि हिंदुस्तान में एक हाई कोर्ट, केरल के हाई कोर्ट का एक जज, उसने किस खूबसूरत तरीके से एक नागरिक के अधिकारों का सम्मान किया है। उसके ऊपर लगाए गए अश्लीलता के आरोप में उसने साफ कर दिया है कि नग्नता और अश्लीलता हमेशा ही एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। और उसने पॉक्सो जैसे गंभीर मामले से इस महिला को आज़ाद किया है। तो ये रेहाना तमाम चीज़ों से छूट कर निकली है हाई कोर्ट से। ये अलग बात है कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार और भाजपा के लोग, ये लोग अलग अलग या मिलकर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं, कुछ करें, लेकिन हमारा मानना है कि हाई कोर्ट का फैसला इतना शानदार, इतना बुलंद, इतना साहसी फैसला है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं सुनेगा अगर ये लोग जाना तय करेंगे तो एक महिला किस तरह से लड़ाई लड़ती है, अपने समाज के भीतर लड़ती है। इसके चलते चलते बीएसएनएल में काम कर रही थी रेहाना, वहाँ से इनको नौकरी से हटा दिया गया कि आपसे बीएसएनएल की इतनी बदनामी हो रही है कि इसकी कमाई गिर गई है। एक महिला के एक केस से बीएसएनएल की कमाई गिर गई। जो लोग बीएसएनएल को यूज़ करते हैं वो लोग जानते हैं कि घटिया खराब सर्विस के चलते हुए ये कंपनी वैसे ही डूब रही है। शायद सरकार भी चाहती है कि डूब जाए ताकि निजी कंपनियां ज़्यादा चलें, ये और डूब जाए ताकि इसको बेच दिया जाए। सरकार भी चाहती है कि बीएसएनएल डूबे, खुद बीएसएनएल में काम करने वाले चाहते हैं डूबे। और रेहाना जैसी एक अकेली महिला के ऊपर ये तोहमत लगाई गई कि तुम्हारी हरकतों से बीएसएनएल की बदनामी हो रही है कि उसकी कमाई इतनी गिर गई। आप ये इंटरव्यू ध्यान से सुनिएगा। आज बस इतना ही, मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।